Good morning, my dear children. I welcome you all in today's EVS class, in which we will go through reproduction in plants. It is chapter 3 of your EVS book, and in today's class we will cover part 1. Now I hope the word reproduction is not new for you, because in chapter 1, which is special characteristics of living things, we already learned well about the meaning of reproduction. ओके आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. All living things have limited life span. They all die sooner or later. So in their lifetime they produce young ones of their own kind, so their species may not die out. सभी लिविंग थिंग्स अपनी लाइफ में अपनी ही तरह की दूसरी लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करती है ताकि उनकी एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर बनी रहे. उसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. So I used one word. It is all living things produce young ones of their own kind. Own kind means human beings reproduce baby, dog reproduce its own kind, puppy, cat reproduce its own kind, kitten. Same as plants reproduce seed, which will become seedling, and after it will become plants. It means all living things reproduce. So I hope now you understood well that what is reproduction. All living things reproduce their own kind. The young ones look like their parents when they grow. सभी लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती है अपनी ही तरह की दूसरी लिविंग थिंग्स को, जो पहले छोटे होते हैं और बाद में वो अपने पेरेंट्स की तरह ही बड़े होके लगने लगते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन काइंड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. अपनी ही तरह की दूसरी लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है. ओके. In this chapter we will learn about reproduction in plants. So there are some ways or methods by which plants reproduce. What are those methods? First is reproduction through seeds, another vegetative reproduction, and third is reproduction through spores. These are three ways by which plant reproduce. At the end of this chapter you will get enough understanding regarding these three methods, but in part 1 we will learn more about reproduction through seeds. Flowers are so amazing. We all love flowers, right? But student, do you know that what is the main function of flower? Flowers are not just to increase the beauty of plant, but actually flowers involve in reproduction process. Flowers reproduce seeds and fruits. So how it happen? To understand this, first we should know about the structure of flower. A complete flower has four holes, that is calyx, corolla, androecium and gynosium. You are amazed to know that same as human beings and animals, plants also have male and female reproductive organs. Female reproductive organ is known as gynosium in plant, whereas male reproductive organ is known as androecium in plants. Right? Female reproductive organ gynosium produce pollen and androecium receive pollen. Okay? And corolla are petal of flower which attract insects for pollination, and calyx are a small leaf type structure which are below the corolla, and it protect the inner parts of flower. Okay. Now how flower reproduce seeds? To understand this, let's understand the structure of flower and its function in more detail. Now it is a complete structure of flower. Okay, बहुत ध्यान से समझेंगे आप इसको. Stamen is male reproductive organ. Okay,
जो भी मैंने आपको बताया था एंड्रोजियम. सो एंड्रोजियम composed of stamen which has two main part. First is anther and another one is filament, right? कभी भी आपने कोई फ्लावर हाथ में लेकर देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि फ्लावर की जो लीव्स होती है उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है. ओके, वो बहुत टाइनी होता है, वो आपको इतना अच्छे से आप उसको देखकर नहीं पता लगा सकते हैं, बट ये सारे उस छोटे से फ्लावर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्स के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. ठीक है, जैसे एंथर. एंथर क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट कंटेन्स पॉलन. ओके, पॉलन ग्रेन्स. जो कभी भी आपने फ्लावर देखा होगा तो उसके बीच में बहुत छोटे छोटे टाइनी सी क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, वो क्या कहलाता है? पॉलन. वो पॉलन कहाँ पर होता है? एंथर के अंदर होता है. ओके, एंड व्हाट इज फिलामेंट? एंथर के नीचे देखिए आप, ये थिन से जो लाइन जा रही है, इट इज कॉल्ड फिलामेंट. इस फिलामेंट का क्या काम है? ये एंथर को होल्ड करके रखता है. ओके, सो दीज आर एंथर. देखिए ये सारे एंथर है एंड ये जो सारे हैं दिस ऑल आर फिलामेंट. ओके, एंड उसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, अभी मैंने आपको बताया था गाइनोजियम. सो गाइनोजियम कंपोज्ड ऑफ कार्पेल और पिस्टल. अब कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी बोल सकते हैं. ओके, एंड कार्पेल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स. ओके, ये जो आप देख रहे हैं, it is female reproductive organs and they are male reproductive organs. Okay, it is anther which contains pollen and it is filament which hold the anther. Same as ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसमें सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं इट इज स्टिग्मा. इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड स्टिग्मा. स्टिग्मा का क्या काम है? स्टिग्मा यहाँ से एंथर से पॉलन रिसीव करती है. ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. एंड ये जो इसके नीचे का स्ट्रक्चर है जो ओवरी के ऊपर है, एक ट्यूब टाइप का, इट इज नॉन एज स्टाइल. इसको क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं. ठीक है, ये ओवरी के ऊपर होता है, टॉप पर होता है. एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा, इट इज ओवरी. इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं. इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच कंटेन्स ओव्यूल्स. ये जो देख रहे हैं आप, ये 6 जो सर्कल वाली शेप है, ये क्या है? ओव्यूल्स है. ठीक है, इट इज रिप्रोडक्टिव सेल विच विल बिकम द सीड व्हेन फर्टिलाइज्ड बाय पॉलन. ठीक है, ये जो ओव्यूल है ये चेंज होते हैं किसमें? सीड्स में. ओके, ये मैंने अभी आपको बताया था. कैलिक्स जो होते हैं वो फ्लावर के लीव्स के नीचे जो टाइनी लीव्स होती है वो सभी कंबाइंडली कहलाती है कैलिक्स, और इंडिविजुअली हर एक लीफ कहलाती है सेपल. ओके, एंड इट इज पेडिकल. जो फ्लावर के नीचे की जो स्टेम होती है डेलिकेट सी, इट इज पेडिकल, और इट इज पेटल. मैंने जो कोरोला बोला, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेटल. ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फ्लावर क्या करते हैं? सीड फॉर्म करते हैं. यहाँ एंथर है. एंथर से पॉलन कहाँ पर आता है? स्टिग्मा में आता है. ठीक है, स्टिग्मा से ओवरी में आता है. देन जो ओव्यूल होते हैं उनमें प्रोसेस होता है, एंड देन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड्स. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? The transfer of a male gamete from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower is called pollination. Pollination क्या होता है? मैंने अभी आपको बात कही कि pollen grains जो है वो एंथर से कहाँ पर जाते हैं? स्टिग्मा में जाते हैं. This process is called pollination. ये process क्या कहलाता है? Pollination कहलाता है. The transfer of male gamete. Male gamete means pollen grain. From the stamen of a flower. Stamen means anther. Anther is a part of stamen. तो एंथर, फ्लावर के एंथर में से फ्लावर के स्टिग्मा, एंथर
is male reproductive organ and stigma is female reproductive organs. Okay, तो जब pollen grain जाता है एंथर से कहाँ पर, स्टिग्मा में, तो वो क्या कहलाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ओके, तो पॉलिनेशन जो है वो एक ही फ्लावर के बीच भी हो सकता है, अ सेम फ्लावर, और टू फ्लावर के बीच भी हो सकता है. तो दे आर नोन एज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरह से होता है. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन. pollen grains from the anther of the flower are carried over to stigma of the same flower. यहाँ पर आपको सेम फ्लावर वर्ड ध्यान रखना है. सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर होता है, ठीक है, उसी फ्लावर के एंथर से pollen grains जाते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा में, तो इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. राइट, लाइक दिस. स्टेमन एक ही फ्लावर है ये पूरा, स्टेमन मीन्स एंथर, ठीक है, आप इस पूरे को, इसको आप एंथर और इसको फिलामेंट कहते हैं और दोनों को ज्वाइंटली कहते हैं स्टेमन. राइट, तो पॉलन ग्रेन स्टेमन या एंथर भी आप कह सकते हैं, वहां से जा रहा है स्टिग्मा में, विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, मीन्स एक ही फ्लावर के बीच ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन. एंड द नेक्स्ट टाइप इज क्रॉस पॉलिनेशन. दूसरा तरीका है क्रॉस पॉलिनेशन. इसके अंदर क्या होता है, the pollen grains from the anther of a flower are carried over to the stigma of another flower, either borne by the same plant or by a same kind of different plant. Means इस प्रोसेस के अंदर दो फ्लावर पार्टिसिपेंट करते हैं. एक फ्लावर के एंथर और स्टेमन से pollen grain जाता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है, एक फ्लावर के स्टेमन और एंथर से pollen grain जाता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में. मीन्स इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन टू फ्लावर पार्टिसिपेंट, दो फ्लावर पार्टिसिपेंट करते हैं. अब वो दो फ्लावर किसी एक प्लांट के भी दो फ्लावर हो सकते हैं या सेम टाइप के कोई दूसरा प्लांट भी हो सकता है. जैसे अपन बात करें कोई पार्क है, कोई गार्डन है, उसमें बहुत सारे एक ही तरह के फ्लावर्स वाले प्लांट है, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में भी क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है. वो पॉलिनेशन कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. या एक ही प्लांट के फ्लावर ऊपर वाले फ्लावर और नीचे वाले फ्लावर में अगर ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन का तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर मोर देन वन फ्लावर होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो एक ही फ्लावर में. आप इसके थ्रू और इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं. देखिए, एक फ्लावर है, पॉलन ग्रेन्स स्टेमन से या एंथर से कहां पर जा रहा है, स्टिग्मा में जा रहा है. राइट, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि एक ही फ्लावर में ये प्रोसेस हो रहा है. यहाँ पर दो फ्लावर के बीच प्रोसेस हो रहा है. वो दो फ्लावर चाहे तो किसी एक प्लांट के भी दो फ्लावर हो सकते हैं या दो अलग अलग प्लांट भी हो सकते हैं एक ही तरह के. ओके, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, तो इट इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, आगे आप लोगों को अच्छे से समझ में, आई होप. नाउ इट्स अ टाइम ऑफ योर होमवर्क. A. Fill in the blank space with the help of words. I am giving you 3 words. ठीक है, इन 3 वर्ड को समझकर आपको fill in the blanks में करेक्ट वर्ड फिल करना है. फर्स्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज डैश. Corolla attract insects for dash. Dash is the male reproductive part of flower. Okay, and the next homework. Now question B is define. You supposed to write the definition of reproduction and pollination. And question C is differentiate between self pollination and cross pollination. Okay, आपको क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच डिफरेंस बताना है. राइट, सो इट इज ऑल अबाउट योर होमवर्क. डू स्टडी वेल स्टूडेंट. फॉर एनी क्वेरी, any confusion, feel free to call me or message me. Have a happy study and good day to you all.